एक बार इस पे क्लिक करें बैकग्राउंड। हाँ ठीक, अब इस पे क्लिक कीजिए। हाँ बस ठीक, कैमरा ऑन कर लीजिए। अब आप स्टार्ट करें, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। Hello everyone. Hello Sanskriti, how are you? Yeah, good evening, good evening. Okay, that's fine. Okay, that's great. Okay, so I'm good, I'm good.
Thank you. Okay, so before we start, let's just do some numerical. स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो हमें लास्ट क्लास में पढ़ा था. लाइक लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, पास्कल्स लॉ हमने पढ़ा था. ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. ठीक है. सो हियर फर्स्ट वी विल डू सम प्रॉब्लम. Then we will learn Bernoulli's theorem and after that application of Bernoulli theorem. Right. Okay, so just see question number first. It is said that okay, let me draw the figure. It will make you more clear. There is a metallic sphere like this. This is metallic sphere. And let us suppose a density of metal, some like we can represent as rho m. Rho m means what? Density of this metallic sphere basically, right? And it is said that it has been submerged in a mixed fluid, right? एक mixed fluid में इसको submerged किया गया है, डुबाया गया है, such that 4/5 of volume is in water and 1/5 of its volume in liquid, right? Like this we can understand like this. Let us suppose कोई भी situation आप ले सकते हो. ठीक है. एक मिनट, let me change the color first. Like this. This 4/5 volume is in water whose density is given. Density of water is 10 to the power 3 kg per meter cube, and 1/5 of its part is in liquid of some other density, right? Let us suppose like this is filled like this, right? And this 1/5 part is in a liquid, right? Is in liquid having density 13.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube, right? So what you have to find? You have to find density of metal, right? You have to find density of this metal. Do you know, Sanskriti, how to solve this question? Actually, this is based on Archimedes principle, or you can say just buoyancy force. Just write the force balance relation and you can get the answer.
Sanskriti, are you able to solve this? Yes, sir, I am solving. Okay, okay, let's do this. You just write the force balance relation. Mg is acting will act downward and net buoyancy force will act vertically upward. Right? And basically there are two kind of fluids, so keep in that in mind. What into 10 How much? kg meter. Okay, 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 fine. Okay. Basically, like just do the force balance and you will get the answer, right? So what we can write mg will equal to volume into density of this metal and to G, and this will be equal to V by 5 density of liquid into G and 4 by 5 V into density of water into G. So G will get cancel out, V will get cancel out. So what we left with density of metal will be equal to 1/5 of density of liquid, and density of liquid is 13.5 into 10 to the power 3 plus 4 by 5th of density of water, that is 10 to the power 3. So when we will simplify, what we will get 13.5 by 5 plus 4 by 5 into 10 to the power 3. So when we will solve, what we will get approximately 3.5 into 10 to the power 3 kg meter per kg, right? So did you get this one or something else? Yes, sir, same thing. Okay, that's great. Okay, fine. Okay, so let's do one more. There is a container and it is filled with fluid, let us say it, water, right? And it is filled up to this level like this, right? And there is a block like this, and density of this block is equal to 0.8 gram per centimeter cube, and you know density of water is 1 gram per centimeter cube, right? And this block is held at this position with a string like this attached with bottom of the surface of this container, right? So first, like this is the normal condition. What you have to find tension in this string. Mass of the block is 1 kg. Mass is equal to 1 kg. So part A is find tension in a string in this situation. It's a simple one. आपको क्या फाइंड करना है, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, दैट यू हैव टू फाइंड.
सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। एक्चुअली क्या है, एक ब्लॉक है ऐसे, इस ब्लॉक की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है, राइट। सो ऑब्वियसली अगर किसी ब्लॉक की डेंसिटी इस फ्लोट से कम है तो ये फ्लोट कर रहा होगा, बट इसको क्या किया गया, एक स्ट्रिंग से ऐसे अटैच करके बॉटम ऑफ कंटेनर से फिक्स कर दिया गया, ऐसे बांध दिया गया, ठीक है। सो ऑब्वियसली इस स्ट्रिंग में कुछ न कुछ टेंशन डेवलप होगा, सो आपको ये टेंशन की वैल्यू बतानी है। What will be tension in this string? आपको समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? Yes, sir, I'm trying. ओके, ओके। सी बेसिकली अगर हम एपीटी ड्रॉ करेंगे हमें क्या मिलेगा, दिस टेंशन फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एंड buoyancy फोर्स विल एक्ट अपवर्ड लाइक दिस, राइट। सो ये क्या सिचुएशन है, दिस इज सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली टेंशन प्लस mg इज इक्वल टू mb, दैट इज buoyancy फोर्स, राइट। सो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू buoyancy फोर्स माइनस mg, राइट। और buoyancy फोर्स क्या आएगा, buoyancy फोर्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दैट ब्लॉक into density of water into g minus mg। अब इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक दिया नहीं है, बट क्या दिया, मास दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी अपॉन मास, राइट, सॉरी मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, ठीक है। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वॉल्यूम के प्लेस पे mass upon like this, mass upon density of that block into density of water g minus mg, right। अब mg के बारे टर्म को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं बाहर like this। सो क्या बचेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस 1, राइट। मास 1 kg दिया हुआ, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है, एंड डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितना दिया, 0.8 दिया हुआ,
ठीक है, इसको लिख लेते हैं, दिस इज 0.8 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, 10 इंटू इसको 1 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 0.8, राइट। सो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम 0.2, सो 10 इंटू 0.2 बाई 0.8, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 न्यूटन, ठीक है। इन नॉर्मल केस में कितना आ गया, टेंशन इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन, ठीक है। समझ में आ गया ये, Yes, sir. ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया है। अगर इसमें एक चीज करो, Slide ऊपर करना. ओके, Okay, sir. क्लियर है, Yes, sir. ओके। अब मैं इसमें थोड़ा स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ, चेंज क्या, देखो इसको, अगर ये जो कंटेनर है ना, कंप्लीट जो कंटेनर है, इस कंटेनर को अगर कुछ एक्सेलरेशन से मैं एक्सेलरेट कराऊं अपवर्ड लाइक दिस, राइट, इस तरीके से अगर एक कंटेनर क्या करे, एक्सेलरेट करने लगे अपवर्ड डायरेक्शन में विथ a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, so what will be value of tension in this case, ठीक है। या लाइक डायग्राम सेम है, आप ये लिख लेना, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ये लिख लो आप, राइट। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन इन दिस केस, डी पार्ट लिख लो, वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स in second case, right. Second case means what, if container moves up with acceleration a is equal to 1 meter per second, One point. how much, 1.5. 1.5 I think so, okay। basically like अगर एपीडी बना है, so like in this diagram रिपीट कर दीजिए, रिपीट नहीं हो पाएगा, लोग आप एक क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है, बिकॉज आप काफी लेट हो, क्वेश्चन है, बाकी कुछ हमने पढ़ा था, तो क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको नोट कर लो इसको, ठीक है। तो सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, एपीडी जो बनेगी सिंपली क्या होगा, जो सूडो फोर्स एक अपोजिट टू एक्सेलरेशन लग जाएगा, टेंशन पहले से लग रहा था, mg पहले सेट कर रहा था, सूडो फोर्स इस डायरेक्शन लग जाएगा ma लाइक दिस, एंड ऑब्वियसली बायसी फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा था, ठीक है। सो जैसे इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ टेंशन मिलेगा। कितना आ रहा है आंसर आपका, 1.5. राइट राइट, सही सही। आलोक नोट डाउन हो गया ये, जी ओके चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म मूव करते हैं।
तो पढ़ लेते हैं पहले, राइट, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अब लिखो आप लोग बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रिंसिपल, कई सारे बर्नौली इक्वेशन, बट दिस थिंग इज सेम। राइट, आप बर्नौली थ्योरम बोल सकते हो, बर्नौली इक्वेशन बोल सकते हो आप, राइट। थिंग इज द सेम, चीज सेम है, नाम अलग अलग है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि लाइक डिफरेंट, एक अगर सेम पाइप है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे उस जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, उस चीज को फाइंड करना है। करने के लिए बर्नौली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया, एक रिलेशन बिल्डअप किया कि अगर कोई पाइप है ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, मतलब कि कहीं पे मोटा है कहीं पतला, अगर ऐसा क्रॉस सेक्शन है तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, और एक उन्होंने डिफाइन किया प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो वो सारी चीजों का एक रिलेशन उन्होंने बिल्डअप किया और एक थ्योरम दी, आप इक्वेशन भी बोल सकते हो, थ्योरम भी बोल सकते हो, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, बर्नौली थ्योरम बोलते हैं, राइट। लेट अस सपोज कुछ ऐसा, हम एक ऐसे ही एक नॉर्मली ऑर्डिनरी एक पाइप ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसा जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, दो डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग है। लेट अस सपोज हमने एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया, दिस वन, एंड एक ये क्रॉस सेक्शन कंसीडर हम कर रहे हैं, दिस वन, राइट। एंड लेट अस सपोज ये जो अर्थ सरफेस है उससे कुछ हाइट पे है, दिस इज द अर्थ सरफेस। लेट अस सपोज ये जो हाइट है, दिस वन इज h1, एंड लेट अस सपोज दिस, ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है, h2, ठीक है। एंड दो क्रॉस सेक्शन हम ले रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, लेट अस से इट a1, एंड दिस इज सेकंड क्रॉस सेक्शन, लेट अस से इट a2, ठीक है। ठीक है, बाकी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन फ्लो है, जो आइडियल कंडीशन है फ्लूइड की, वो सारी चीजें एज इट इज वैलिड है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है, विस्कोसिटी नहीं है, वो सारी चीजें एज इट इज लाइक दिस, ठीक है। सो लेट अस सपोज इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो v1 है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज v2, ये v2 है, ठीक है। कैसे हम फाइंड करेंगे, हम कंसीडर करेंगे मोशन ऑफ फ्लूइड in dt time, right? The fraction of fluid flows in dt time, right? हम dt time की बात करेंगे कि dt time में कितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है थ्रू टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, है ना। लेट अस सपोज इस पॉइंट का प्रेशर कुछ p1 है, एंड सेकंड पॉइंट का जो प्रेशर है वो p2। लेट अस सपोज यहाँ पे प्रेशर p1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, p2 है, राइट। सो व्हाट विल कंसीडर फॉर स्मॉल टाइम dt स्मॉल टाइम के लिए हम कंसीडर करेंगे, एंड फॉर दैट विल कैलकुलेट वर्क डन एंड विल अप्लाई वर्क इनर्जी थ्योरम, राइट। देखो कैसे, लेट अस सपोज t इक्वल टू 0 पे हम इस क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, एंड dt टाइम ये जो क्रॉस सेक्शन है थोड़ा सा मूव करके आगे चला गया लाइक दिस, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ चला गया dt टाइम, राइट। तो उस dt टाइम में कितना लेंथ आगे गया, सिंपली v1 dt हम बोल सकते हैं। ये जो लेंथ कितनी आ जाएगी, v1 dt आ जाएगा, राइट, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी कितनी, v1 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देख लेते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पर ये कितना चला जाएगा, ये v2 dt हो जाएगा, ठीक है। तो v1 dt और v2 dt हमें मिल गया, ठीक है। अब एक मिनट, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि वर्क डन बाय प्रेशर, हियर इज p1
एंड हियर इज P2, राइट। अगर प्रेशर है तो फोर्स भी लग रहा है इन दिस सेंस, इस डायरेक्शन में, एक A1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट पे इस डायरेक्शन में से फोर्स लग रहा होगा। वर्क डन बाय दैट, वर्क डन बाय दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, राइट, राइट। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो वर्क डन बाय फोर्स हमें निकालना है, और वर्क डन बाय फोर्स अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें, ठीक है, सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय all forces is equal to change in kinetic energy, right। हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय all the forces is equal to change in kinetic energy। या फिर अगर हम जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसको अगर हम छोड़ दें, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड में, तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय all the forces except conservative forces is equal to change in mechanical energy, right। दैट इज ई से उसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये बताओ, पॉइंट 1 पे वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा, कोशिश करो कैलकुलेट करने की। पॉइंट 1 जो है, उस पॉइंट पे इन dt टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं, हम सब कुछ जो कुछ भी बात कर रहे हैं सब कुछ dt टाइम के लिए बात कर रहे हैं। तो dt टाइम जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हम करेंगे। तो फॉर dt टाइम एट पॉइंट 1 वर्क डन कितना होगा, क्या लोग समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ओके ओके ओके। वर्क डन का क्या होता है फॉर्मूला? वर्क डन में क्या होता है फॉर्मूला? वर्क डन का फॉर्मूला नहीं पता? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर, जो बराबर में जी पता है ना? यस। बलबुड़ी विस्थापन। अब देखो, अब पॉइंट 1 पे अगर आप देखो, Excuse me, sir, will you repeat a bit? Actually, connection lost हो गया था। नहीं तो मैंने ज्यादा कुछ अभी एक्सप्लेन नहीं किया, अभी मैं बस ये एक्सप्लेन कर रहा था कि हमें ये जो पॉइंट 1 है, लाइक दिस पॉइंट और दिस पॉइंट पे हम क्या लगा रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, एंड उस चीज को हम अप्लाई करेंगे अभी वैसे, और सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो हमें क्या लिखना, वर्क डन बाय द फोर्स ड्यू टू दिस प्रेशर P1 एंड P2 इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस पॉइंट 1 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है dt टाइम में, v1 dt हो रहा है, ठीक है। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज P1 इनटू A1, ठीक है। सो 8.1 पे अगर मैं वर्क डन लिखूं, सिंपली वर्क डन इन dt टाइम क्या होता है, फोर्स दैट इज P1 A1 इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dt टाइम में, v1 dt, V1 dt
ये हमें क्या मिल गया, वर्क डन एट दिस पॉइंट 1 इन dt टाइम इज इक्वल टू T1 A1 V1 dt, राइट। इस सेम वे हमें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पॉइंट टू देखो अब प्रेशर किधर, इधर से ऐसे लग रहा होगा ना, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा माइनस टाइम P2 A2, ये फोर्स हो गया, A2 डिस्प्लेसमेंट और कितना हो गया P2, ठीक है। सेम हुआ, अब नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, उसके अपोजिट हो रहा है, ठीक है। ये dt टाइम में कितना मास फ्लो किया वो भी चीज हम निकाल सकते हैं, अगर इसका डेंसिटी रो दिया हुआ है, ठीक है। देखो डेंसिटी रो दिया हुआ तो dm जो मास है, dm मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस इज लेंथ v1 dt एंड एरिया कितना a1 है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया दैट इज a1 इनटू लेंथ, व्हाट इज लेंथ v1 dt, राइट। सो रो a1 v1 dt ये क्या आ गया, dm मास शिफ्टेड इन dt टाइम, राइट। dm मास जो dt टाइम में शिफ्ट हुआ वो क्या आ गया, dm मास आ गया। और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर dm मास निकालो तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा, सॉरी, dm इज इक्वल टू रो a2 v2 dt, राइट। और एक चीज आपने पढ़ा है क्या, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अगर हम लगाएंगे फॉर पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, सो व्हाट वी कैन राइट a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ठीक है, राइट। अब इसको यूज करके आप वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो, वर्क डन 8.1 प्लस वर्क डन 8.2 is equal to potential energy 8.2 plus kinetic energy 8.2 minus potential energy 8.1 plus kinetic energy 8.1। इसमें वैल्यूज रख के ट्राई करो, आप देखो क्या रिलेशन आ रहा है। देखो वर्क डन 8.1 हमने ये निकाला P1 A1 V1 dt, वर्क डन 8.2 ये हमें आया है, राइट। अब देखो इसको मैं लिखता हूँ, वर्क डन 8.1 में क्या लिखूंगा, P1 A1 V1 dt, वर्क डन 8.2 क्या निगेटिव आया था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, P2 A2 V2 dt इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 8.2, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइट h है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dm g, सॉरी ये हाइट h1 h2 है, राइट। तो 8.2 पे क्या है, dm g इंटू h2, राइट। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ dm v2 स्क्वायर, ठीक है। इन सिमिलर वे हम पॉइंट 1 पर भी लिख सकते हैं, पॉइंट 1 पर हम क्या लिखेंगे, एक चीज आप ध्यान दो, अगर आप इसको देखोगे ना तो dm क्या है, बराबर है, बराबर कैसे हुआ देखो कि पॉइंट 1 पे ये dm आया है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई है, a1 v1 और रो dt, पॉइंट 2 पे क्या आया है, a2 v2 रो dt। अब देखो रो dt तो कॉमन है, ठीक है, और a1 v1, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप लगाओगे तो a1 v1 इज इक्वल टू व्हाट, a2 v2, ठीक है। a1 v1
क्या है A2V2 के बराबर है, राइट। तो हम बोल सकते हैं जो डीएम मास dt टाइम में यहाँ से पास हुआ उतना ही डीएम मास इस पॉइंट 2 से भी पास हुआ, ठीक है। सो उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, देखो इसको मैं अभी डीएम में लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डीएम जी H1 प्लस हाफ ऑफ डीएम V1 स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब हमें ये रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब देखो डीएम को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, डीएम को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो डीएम की एक्चुअली वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फिर उसको कट करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं इसको, राइट। अब इसमें dt अब देखो A1 A2 बराबर टर्म ना, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इसको मैं एक टर्म लिख के कॉमन ले, तो देखना ध्यान से, मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख रहा हूँ, P1 माइनस P2 इक्वल टू A1 V1 dt। मैंने A2 V2 को क्या लिख दिया, A1 V1 लिख दिया, ठीक है। तो A1 V1 और dt कॉमन हो गया, मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखो आप ध्यान से, तो डीएम जो टर्म है ना वो कॉमन है, राइट। जो डीएम स्मॉल मास, और डीएम की वैल्यू क्या है, अब देखो यहाँ पे डीएम की वैल्यू क्या है, इसको लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू है A1 V1 रो dt, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, देखो मैं चलो एक स्टेप लिखता हूँ, तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर माइनस GH1 माइनस हाफ V1 स्क्वायर, ठीक है। अब डीएम की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, ये कितना मैं लिख सकता हूँ, A1 V1 रो dt एंड दिस होल टर्म, राइट। अब देखो A1 V1 dt टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यू विल लेफ्ट विथ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो, और ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर माइनस GH1 माइनस हाफ V1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ तक जो मैंने लिखा वो समझ में आया है, अगर यहाँ तक कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो बताओ। संस्कृति आपको समझ में आया है, ओके बढ़िया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है, कैसे, देखो इसको मैं रो को अंदर लेके जाता हूँ, क्या बन जाएगा, रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस रो GH1 माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, इधर क्या P1 माइनस P2 है। अब P2 को मैं राइट साइड लेके आ रहा हूँ, और ये जो निगेटिव वाला टर्म है उसको लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ, क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब इस रिलेशन को अच्छे तरीके से देखो आप, अगर इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो फिर आप बताओ। ओके बस फाइन। यही जो रिलेशन आया है इसी को हम क्या बोलते हैं, बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम। सो ये क्या स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, it states that work done on a unit volume of fluid by the surrounding fluid is equal to the sum of the changes in kinetic and potential energies per unit volume that occurs during the flow, right? ये बोलते हैं कि work done on a unit volume of fluid by the surrounding is equal to the change in kinetic and potential energy per unit volume that flows during that time period। ये बर्नौली इक्वेशन का स्टेटमेंट है,
एंड दिस वाज द बर्नौली इक्वेशन। अगर आप 11th में तो 11th में क्या रिलेशन पूछ सकता है, तो ये आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू गेट दिस रिजल्ट राइट। सो इसको क्या बोलते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। इसको रिक्स को प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। इस तरीके से अगर एनर्जी टर्म में बोले तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको जनरलाइज क्या करना है, बेसिकली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, प्रेशर P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर कोई फ्लूइड है किसी पाइप में फ्लो कर रहा है और फ्लो अगर स्ट्रीम लाइन है या फिर आइडियल फ्लूइड जो हम बोलते हैं, ठीक है, अगर आइडियल फ्लूइड है तो इन दैट केस हम ये चीज को यूज कर सकते हैं, उस केस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है वो एक चीज मैंने देखी, दो जो पॉइंट्स होंगे, दो जो पॉइंट हो सकते हैं, पॉइंट बेसिकली क्रॉस सेक्शन होगा, तो दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में इस तरीके से उसको अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको ये? स्टेटमेंट आप लिखना चाहो तो लिख लेना, वर्क डन on a unit volume of fluid by the surrounding fluid is equal to the sum of the changes in kinetic and potential energy per unit volume that's occur during the flow. So that's great. Okay, fine. चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, that's good. Okay, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है लाइक दिस। इसमें क्या बोला है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन। चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप ट्राई करना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? राइट, सो एक फ्लूइड है ग्लिसरीन, इसका डेंसिटी दिया हुआ है, कोनिकल सेक्शन के थ्रू फ्लो कर रहा है, and that conical section having two different radii radius है उसका, one is 0.1 meter and another is 0.04 meter, and pressure drop across the two cross section दिया हुआ है, so you have to find the rate of flow, आपको ये चीज फाइंड करना है, इस दोनों क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी कितना होगा वो चीज आपको निकालना है।
ओके ओके 6.43 into 10 to the power minus 4. ओके फाइन, ठीक है, राइट राइट, सही है। आलोक, डिड यू गेट द आंसर? आलोक, आंसर आया आपका? नो सर। ओके, चलो कोई बात, देखो क्लिकली करते हैं इसको। एक्चुअली क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का है, देखो ऐसे बनाए, चलो ऐसे ही देखो, लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। कोनिकल सेक्शन का मतलब लाइक दिस, इस तरीके से है, इस तरीके से है ये, और ऐसे फ्लो करना है, लाइक दिस, इधर से जैसे नहीं, बेसिकली इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, उल्टा तो नहीं पाएगा, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 0.1, एंड इसका रेडियस कितना दिया हुआ 0.04, ठीक है। सो हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। लेट अस सपोज इस पॉइंट पे वेलोसिटी अगर v1 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2, ठीक है। तो पहले आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओगे तो क्या आपको मिल जाएगा, पॉइंट, सॉरी एरिया लिखना है ना आपको, एरिया मींस दिस एरिया, चलो पहले उसको लिख लेते हैं, देखो, तो पाई आर मींस 0.1 का स्क्वायर, v1 इज इक्वल टू पाई 0.04 स्क्वायर v2। तो यहाँ से आपको v1 एंड v2 में एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको क्या अप्लाई करना, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना। तो बर्नौली इक्वेशन देखो, दो पॉइंट्स के लिए जो अप्लाई करना है, हमें क्या पता, P1, सॉरी चलो ऐसे लिखते हैं पहले, P1 की टर्म, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये चीज हमें पता है, राइट। अब एक चीज क्या बोला है कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल इसका वो सेम है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल सेम का मतलब कि H1 इज इक्वल टू H2, H1 इज इक्वल टू H2, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला, जो प्रेशर डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच, मतलब P1 माइनस P2, अगर P1 हम ज्यादा मानते हैं, अब एक चीज ये बताओ कि इसमें V1 V2 में कौन सा ज्यादा होगा, V1 ज्यादा होगा या V2 ज्यादा होगा? सर V1 ज्यादा होगा। नहीं, V2 ज्यादा होगा। जिसका अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, तो जिसका एरिया कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी वेलोसिटी क्या होगी उस क्रॉस सेक्शन पे, ज्यादा होगा, तो V2 विल बी ग्रेटर देन V1। हाँ, अभी बताओ, अगर ये क्रॉस सेक्शन में 1 बोलता हूँ, तो प्रेशर किस क्रॉस सेक्शन पे ज्यादा होगा, इस 1 क्रॉस सेक्शन पे या फिर 2 क्रॉस सेक्शन पे? सर प्रेशर 2 पे होगा ज्यादा, क्यों? क्योंकि सर उसका एरिया कम है।
ओके ठीक है ठीक है। संस्कृति यानी at which point pressure will be high. Even okay right because अगर हम इस बर्नौली इक्वेशन को अगर हम देखें तो हम में बचा क्या यहाँ पे इसमें देखो क्या हमें बचा P1 प्लस हाफ रो V1 is equal to P2 plus half रो V2 square right. So V2 is greater than V1. V2 V1 से बड़ा है और ये तो पूरा टर्म इक्वल है तो P1 क्या होना चाहिए P1 P2 से ग्रेटर होना चाहिए तो यहाँ पे क्या P1 is greater than P2 ठीक है इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी आराम से ठीक है तो हम क्या लिख सकते हैं P1 minus P2 is equal to half of रो V2 square minus half रो V1 square अब P1 minus V2 कितना दिया 10 दिया हुआ है ताकि रो by 2 V2 square minus V1 square अब दो इक्वेशन आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा V1 V2 का रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा उसको यहाँ पे पुट करोगे आप डेंसिटी वाटर की पता ही है आपको क्या मिल जाएगा आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्ट्रीम जो है वो मिल जाएगा ठीक है बेसिकली आपको वेलोसिटी मिल जाएगी तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो रेट ऑफ फ्लो आपको भी पता चल जाएगा ठीक है तो जो V2 है V2 हमने छोटे वाले को माना ना इसमें आप सॉरी दिस इज V2 जो V2 की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आप 1 मिनट पर ट्राई कर लो सॉल्व कर लो अगर कुछ गलती हो रही है तो बताओ V2 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी अराउंड 1.28 मीटर पर थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होगा ठीक है फिर तो प्रोसेस है थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा तो प्रोसेस यही है सॉल्व करने एक लॉजिकल क्वेश्चन बताओ आपको देखते हैं समझ में आ गया लोग यस सर आगे चलो ठीक है नेक्स्ट एक थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट ऐसे एक पाइप है लाइक दिस इस तरीके से लेट अस सपोज ये जो क्रॉस सेक्शन है ये A1 है एंड दिस क्रॉस सेक्शन इज A2 ठीक है एंड लेट अस सपोज इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है इस पॉइंट पे प्रेशर P2 राइट So find a relation between P1 and P2. Which will be greater? कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा? सर P2 प्रेशर ज्यादा होगा सर P2 प्रेशर ज्यादा होगा P1 से कैसे कम कैसे कैसे कैसे
कैसे? ऐसे देख के मत बताओ कि वहां पे पतला है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये लॉजिक नहीं लगता। जो रिलेशन हमने पढ़ा है, हमने मैथमेटिकल तरीका हमने पढ़ा है, हमने उसको डिराइव भी कर लिया है, मैथमेटिकल तरीके से बताओ। संस्कृति did you get the answer? आंसर मिला इसमें P1 out of P1 P2 which will be greater? Okay, basically first देखो, सॉरी, पहले क्या करना है, पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अप्लाई करना है। लेट अस सपोज इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, v1 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है। सो व्हाट यू कैन राइट, a1 v1 is equal to a2 v2, और क्लियरली हमें दिख रहा है क्या, a1 is greater than a2, मतलब ये जो a1 क्रॉस सेक्शनल एरिया वो बड़ा है। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं, v2 is greater than v1, मींस वेलोसिटी at point 2 is greater than velocity at point 1, राइट। अब अप्लाई करो क्या, बर्नौली इक्वेशन। अब एक चीज अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है सेम, ठीक है, बट ऐसा कुछ बोला नहीं, ठीक है, सेम ही हमें मानना है यहाँ पे, तो नहीं कुछ बोला है तो सो जस्ट अप्लाई बर्नौली इक्वेशन। सो क्या लिख देंगे, p1 प्लस रो जी h प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस रो जी h प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। अब रोजीज कट गए क्योंकि दोनों का हाइट क्या है, सेम है, राइट। अब इसमें अब देखो v2 इज ग्रेटर देन v1, v2 इज ग्रेटर देन v1। अब देखो ये वाला जो टर्म है इसको मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ और इसको इधर लेके आ रहा हूँ, मतलब p1 माइनस p2 क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, राइट। सिंस v2 इज ग्रेटर देन v1, so this whole term will be positive। ये टर्म क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मींस p1 माइनस p2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा, p1 इज ग्रेटर देन p2। समझ में आ गया है? दैट्स फाइन। आलोक समझ में आया? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक चीज और कर लें, चलो कर लेते हैं, उसी को कर लेते हैं। तो एक और छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, इसको एक्चुअली लॉ का भी नाम दे दिया गया है, ठीक है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, राइट, लिख सकते हो स्पीड ऑफ। आलोक एक काम करो ना, अपना जो वॉइस है ना बैकग्राउंड का, उसको अभी बंद कर लो, जब बोलना होगा तब उसको ऑन करना।
स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या है? देखो, अगर ऐसा एक कंटेनर है और इसके नीचे ना छोटा सा एक होल कर दिया गया, लाइक दिस, इस तरीके से, बहुत छोटा सा ही, राइट, और इसमें पूरा पानी भर दिया गया इस तरीके से, इस तरीके से। लेट अस सपोज जिस हाइट, जितना पानी भरा गया उसकी हाइट मान लेते हैं कि h है, और ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो कैपिटल ए है, एंड ये जो टैप मान सकते हो आप, या छोटा सा होल आप मान सकते हो, ये जो है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो स्मॉल ए है, एंड स्मॉल ए इज मच मच स्मॉलर देन कैपिटल ए। कैपिटल ए से बहुत ही छोटा है, ठीक है, क्या कैपिटल ए से काफी छोटा है। तो बेसिकली क्या आपको बताना है, लेट अस सपोज अगर यहाँ पे जो इसकी जिस रेट से अगर इसको हमने ओपन कर दिया, तो जिस रेट से ये फ्लूइड फ्लो करेगा, ठीक है, इसकी आपकी स्पीड बतानी है बेसिकली। ने इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, ठीक है। आप क्या बताना है, इस बॉटम पॉइंट पे जो फ्लूइड फ्लो होगा उसका स्पीड क्या होगा, दैट यू हैव टू फाइंड, वो चीज आपको फाइंड करना है। सिंपली इसको ओरिफिस बोलते हैं, ओपनिंग या ओरिफिस इसको। ये किसी भी हाइट पे हो सकता है, तो उस जगह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली मोस्ट ऑफ द जगह आपको दो इक्वेशंस यूज में आएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली इक्वेशन। यहाँ पर भी सेम चीज, एक बार आप ट्राई करो, एक मिनट में कैसे आप कर सकते हो। ओके, सर √2GH है। कैसे √2GH आ गया? √2GH कैसे आ गया डायरेक्टली? नहीं सर, जीरो को मान सकते क्या जीरो मान सकते हैं? बी जीरो, ये जीरो हो जाएगा। बी जीरो पे। अच्छा, ओके, चलो कोई बात नहीं। देखो एक्चुअली हमें क्या करना है, दो पॉइंट लेना है, एक पॉइंट इसके सरफेस पे, लेट अस सपोज ये पॉइंट 1 है, और एक पॉइंट यहाँ पे, इसको पॉइंट 2 मान लेते हैं, ठीक है। दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर दोनों का क्या होगा, सेम होगा, P0 P0, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। और यहाँ पे मान लेते हैं कि जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी भी है, और जिस रेट से डाउन हो रहा है इसकी वेलोसिटी भी है। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओगे तो क्या मिलेगा, A V1 इज इक्वल टू स्मॉल a v, ठीक है। तो जो V1 क्या हो जाएगा, स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू V, राइट। तो बिकॉज स्मॉल a मच मच लेस देन कैपिटल A, तो V1 क्या आ जाएगा, मच मच लेस देन V आ जाएगा। बेसिकली क्या होगा, ये जिस रेट से ये जो लेवल है वो स्लो, मतलब हमें दिखेगा नहीं बेसिकली, ठीक है। जिस रेट से वो डिक्रीज हो रहा होगा, डाउन हो रहा होगा, राइट, हम उसको उतना क्लियरली देख नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि नेग्लेजिबल या इसको नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है। ऐसा हम इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो भी इसको मान सकते हैं। एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली जीरो मान के हम इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये किसी सरफेस पे ऐसे
रखा गया लाइक दिस, ठीक है। सो अप्लाई बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट 1 एंड 2, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन पॉइंट 1 पे हम लिखते हैं तो प्रेशर कितना, एक्सटर्नल प्रेशर P नॉट है, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, हाइट H है। पॉइंट 2 पे P नॉट प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस 0, 0 क्यों, क्योंकि इसकी हाइट क्या है, 0 है, इसलिए पे है। अब V1 टेंडिंग टू 0 है तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, ठीक है, बहुत छोटा है। P नॉट विल गेट कैंसिल, और फाइनली क्या बचेगा, रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर, रो विल गेट कैंसिल आउट, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू रूट 2 GH, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, या फिर इफ्लक्स स्पीड या इफ्लक्स वेलोसिटी इसको बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे, अभी रूट 2 GH से क्या आपको समझ में आता है, अगर हम किसी पार्टिकल को अर्थ सरफेस से h हाइट से अगर रिलीज करते हैं तो यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वो हो जाती है रूट 2 GH, राइट। मतलब कि ये क्या है, उसी की तरह सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर टू अगर किसी पार्टिकल को किसी हाइट से अगर रिलीज हम करते हैं, छोड़ते हैं, उसकी जो वेलोसिटी है वो उसी की क्या है, सिमिलर है। एक साइंटिस्ट थे टोरिसोली, उन्होंने इसको डिफाइन किया एंड उन्हीं के नाम पे इसको स्पीड ऑफ इफ्लक्स भी बोलते हैं, और उन्होंने जो थ्योरम दिया, बल्कि वही स्टेटमेंट दे दी इसको कंपैरिजन करके, उसको टोरिसोली थ्योरम भी बोला जाता है, टोरिसेलीज थ्योरम, ठीक है। टोरिसेलीज थ्योरम यही है कि द फ्लो ऑफ वाटर स्पीड है रूट 2 GH, वो सेम है, एज सिमिलर है, सिमिलर टू फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल और बॉडी फ्रॉम ए हाइट h, उसके क्या है, सिमिलर है, ठीक है। दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय टोरिसेली, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेटमेंट, इसको टोरिसेली थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहो तो उसको लिख लेना इस तरीके से, this velocity of efflux of a liquid is swing out of an orifice is same as it would attain if allowed to fall freely through a vertical height between liquid surface and orifice। मतलब कि अगर इसको जो हाइट है इस लिक्विड, बेसिकली वही चीज, अगर इस लिक्विड मान लो इसको रिलीज करते तो ये जो वेलोसिटी उसकी आती नॉर्मल में, वही इसकी अभी भी है, ठीक है। लिख लो अब टोरिसेलीज थ्योरम का स्टेटमेंट, द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट ऑफ एन ओरिफिस, ओरिफिस मींस ये जो छोटा सा पार्ट है, ये जो हमने बनाया है जहां से वेलोसिटी निकल रही है, वो ओरिफिस है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट ऑफ एन ओरिफिस is the same as it would attain, is same as it would attain if allowed to fall freely through the vertical height between the liquid surface and orifice। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, the velocity of efflux of a liquid flowing out of an orifice is same as it would attain if allowed to fall freely through the vertical height between the liquid surface and ओरिफिस, ठीक है। तो टोरिसेली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, ठीक, उनके नाम से थ्योरम बन गई। ऐसे ही होता है, साइंटिस्ट ने कोई चीज देखी, उन्होंने अपना नाम दे दिया, उसके नाम से क्या हो गया, फेमस हो गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बर्नौली थ्योरम पढ़ लिया, हमने टोरिसेली थ्योरम पढ़ लिया। इसमें एक चीज आप कर सकते हो, क्या, देखो एक्चुअली इस चीज का भी कैलकुलेशन आ जाता है। जो हमने होल बनाया था बॉटम पे, उसको अगर मैं कहीं और बनाऊं,
ठीक है, ऐसे लाइक दिस। यहाँ पर एक छोटा सा बल मैंने छोड़ दिया, ठीक है, लाइक दिस। तो एक मिनट इसको फिल कर देते हैं पूरा, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो क्या आपको बताना है, ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज h एंड दिस इज y। सो आपको फाइंड करना है इसका रेंज क्या होगा, मींस लाइक ये ऐसे गिरेगा यहाँ कहीं, तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज क्या होगा, यू हैव टू फाइंड दिस रेंज, फाइंड रेंज, ठीक है, क्लियर है, राइट। ये y हाइट ऊपर है, तो जो रेंज की वैल्यू आपसे पूछी गई है, समझ में आ रहा है कैसे इसको सॉल्व करना है। तो वेलोसिटी तो पता चल गई थी हमें, ठीक है। तो वेलोसिटी का मतलब कि इस पॉइंट से, इस ओरिफिस से जो फ्लूइड निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट आपकी हो जाएगी h माइनस वाई। सो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी विल इज इक्वल टू रूट 2g इंटू h माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। आलोक 4hy, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। वेलोसिटी कितनी हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, रूट 2g इंटू h माइनस वाई, राइट। एंड अब एक चीज और आप देखो, अब सिंपल क्या है, अब आप कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल को ऐसे v वेलोसिटी से जब छोड़ते हो, ठीक है, तो यहाँ से एक ऐसे पाथ जब बनाता है तो ये वर्टिकल हाइट हम काउंट करते हैं किसके लिए, टाइम के लिए। तो बेसिकली अगर ये हाइट h है तो टाइम कितना था, टाइम आता है रूट 2h/g। अगर आप अंडर रूट 4hy, अंडर रूट 4h/g वो नहीं आएगा, कुछ और आएगा। आलोक देखो अभी इसको समझो पहले, यहाँ से यहाँ आने में मतलब वर्टिकल डिस्टेंस y ट्रेवल करने में पार्टिकल को टाइम कितना लगता है, टाइम आएगा आपका रूट ऑफ 2y/g। अब ये बताइए, पता है कि सिंपल जो काइनेमेटिक्स का रिलेशन है वो हमारा, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी है और यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लग रहा है, रूट ऑफ 2y/g। सो लेकिन ये टोटल टाइम हो गया और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी इतनी है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई फोर्स है ही नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। सो रेंज क्या हो जाएगा, सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है, रूट ऑफ 2g
h minus y into टाइम कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 2y by g. So g will get कैंसिल आउट, आप क्या मिल जाएगा सिंपली 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ y into h minus y. रेंज की वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा. अब प्रोसेस को समझो, उसको याद करने की कोशिश मत करो, फिर रट्टा मारोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, प्रोसेस समझो. हमने क्या किया, हमने यहाँ से नीचे तक आने में टाइम कितना लगता है वो हमने निकाल लिया, और वेलोसिटी का फॉर्मूला रिलेशन में पता ही था. ठीक है, समझ में आया. अभी अब तो रूट 4h कहां से आ रहा था सर? जो ऊपर वाली हाइट है सर उससे हम एच ले रहे हैं, सिर्फ एच. नहीं तो एच से मतलब नहीं ना, वेलोसिटी जो जब निकालते हैं तो जहां से फ्लो कर उसके ऊपर जो हाइट है दैट विल मैटर, वो चीज मैटर करेगा. नीचे उसकी कितनी हाइट है वो मैटर नहीं करेगा, ऊपर कितनी हाइट है वो चीज मैटर करेगा, बिकॉज दैट विल क्रिएट प्रेशर. वो प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा तो उससे फिर क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी. ज्यादा हाइट तक होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, कम होगा तो कम होगी. ठीक है, ओके. अब इसमें एक चीज आपको होमवर्क करना है. होमवर्क क्या करना है, फिर अगर पता होगा आपको तो अच्छी बात है. ये जो रेंज की वैल्यू आएगी ना, क्या है 2 into स्क्वायर रूट ऑफ y into h minus y. सो करना आपको ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y रेंज वुड बी मैक्सिमम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y रेंज would be maximum, right? ये आपका होमवर्क है. किस y के किस वैल्यू के लिए जो रेंज हमने निकाला है वो मैक्सिमम होगा, वो चीज आपको फाइंड करना है. समझ में आ गया ये? चलो बढ़िया. संस्कृति नोट डाउन कर लिया आपने? ओके भाई. ओके, सो आज के लेक्चर में जो कुछ भी हमने पढ़ा, कुछ पूछना है, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क पूछ लो आप, बिकॉज वी विल आज क्लास खत्म करते हैं यहीं पे. ओके ओके. अब लाइक मेजर पोर्शन ऑफ फ्लूइड जो है वो हो चुका है, एंड अभी बचा क्या कुछ चीजें, लाइक सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गई, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो बचा है. उसको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट कर लें. बट जो मेजर पोर्शन है रेस्ट लाइक डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है कितना प्रैक्टिस करते हो. ठीक है, वो बाकी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा आपके लिए. ठीक है, संस्कृति, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग टुडेस लेक्चर? Okay, that's fine. Okay, then bye everyone. See you in next class. Okay. Thank you so much. Welcome.